Hello guys, once again all of you are welcome to the class of English. Here we are learning our poem number 5. This is the Ball poem written by John Berryman. So in Ball poem, in earlier two videos we told you that how a boy lost his ball. In first stanza we learned that the boy lost his ball and how he saw it going into the harbor. Okay, these are the things what happened when he was uh, when he was in his young days, and now he is remembering those days, because with the loss of the ball he thought that he had also lost his childhood days. Okay, so in second stanza the boy was shaking with the ultimate grief. He was trembling. I think he was not able to accept that his ball has been lost. But the poet here don't want to interrupt, because he want at this position that the boy should learn about the loss. He should learn his responsibility. And in the third stanza, the boy now understands that it was a part and parcel of the life that one has lost something. Actually, loss and profit are the two phases of the same coin. Okay, so in this way, the boy now senses his first responsibility. Now, let us have the explanation of stanza number 4. He is learning well behind his desperate eyes. This epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. Okay, so now the boy is learning that loss is also the ultimate fate of a human being, whether it is in the form of a material or in the form of a human being. But loss is a natural part in a human being's life. So in this way, now the boy is learning that loss is compulsory. वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट का मतलब जो निराश होती है, जो उदास होती है, ठीक है, अपनी सैड आंखों से अब वो जता रहा है कि उसने सीख लिया है अब की लॉस क्या होता है. दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी कि लॉस की नॉलेज उसको समझ आ गई है. हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे अब हमें बेयर करना है उस लॉस को. नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और अब उसे समझ आ गया कि हर इंसान को sooner or later must know what the loss is, and it is compulsory in one's life because it is the most superficial part and parcel of everyone's life. Okay, so in this way, let's have the word meanings. Desperate, desperate means hopeless, that is very sad. Epistemology of loss, it means understanding, the knowledge of loss. Nature of loss, it means to lose something. Epistemology, it's a Greek word which means knowledge. Okay, so epistemology का मतलब क्या होता है कि knowledge of something. Epistemology is the study of the nature of knowledge itself, यानी कि knowledge से ही संबंधित है ये. So in this way we explain that loss is the ultimate fate of one's life, and in this way we are learning that the boy now learned the epistemology of a loss. Okay, so chaliye let's have the explanation. Now the poet suggests that from the loss of the ball the boy is learning how to stand up in a world of possession, यानी कि अब बच्चे ने सीख लिया है कि how he would bear the loss in his life. The boy is learning what it means to lose everything. अब बॉय ने सीख लिया है कि कोई भी चीज़ अगर गुम हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है. द पोइट सेज दैट नोइंग दैट एवरी मैन हैज़ टू स्टैंड अप आफ्टर सच लॉसेस, यानी कि बच्चे ने अब पता लगा लिया है कि जब भी कोई लॉस होता है, कोई नुकसान होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक फॉर्म में हो, यानी कि इंसान को उसे बेयर करना आना चाहिए, उसको फेस करना आना चाहिए. द बॉय टू विल लर्न हाउ टू स्टैंड अप, अब बच्चा भी सीख लेगा कि कैसे उसको स्टैंड अप का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बेयर करना, सहन करना. एंड लीव द लॉसेस बिहाइंड एज ही वुड हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग एंड नेचर ऑफ लॉस. ठीक है, और अब उसे अपने सभी दुख तकलीफ को पीछे छोड़ करके ये समझ जाना चाहिए कि असली मतलब क्या होता है लॉस का. सो व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द पोएम. सबसे पहले ये अनराइम्ड है. अनराइम्ड का मतलब क्या होता है, देयर इज़ नो रिदम, देयर इज़ नो राइम स्कीम. ओके, इट इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स, जैसे कि व्हाट इज़ द बॉय नाउ,
हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do, I saw it go। यानी कि देखो पीछे कोई भी वर्ड आपस में राइम नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, सो इट्स अ ब्लैंक वर्स। सिम्बॉलिज्म मैंने आपको पहले ही बताया है, दिस पोएम इज बेसिकली सिम्बॉलिज्म एंड हियर द बोल symbolizes the boy's young and innocent days, his childhood days। Okay, next is repetition। We also saw that repetition just all over in the poem, like what balls। Next is alliteration। Alliteration means, yes, we have the repetition of consonant sound in two or more consecutive word at the initial position। यानी कि लगातार रिपीटेशन होनी चाहिए कॉन्सोनेंट साउंड की, जो कि पास पास के शब्द में होती है, ठीक है, और जो कि सिर्फ पहले पोजीशन पे होना चाहिए। जो हमारा लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है, वो फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए, इनिशियल पोजीशन पे होना चाहिए। जैसे वर्ड बॉल्स, बाय इज अ बॉल बैग, here not the halls but it is the ball bag। Okay, so let us consider the summary। this poem is about losing something which we love and then learning to grow up। ये पोएम उस चीज़ के बारे में जहाँ पे हम कुछ गुम कर देते हैं और गुम होने के बाद हम उसको सहन करना सीखते हैं, ये हमें इस पोएम में बताया गया है। इट इज़ अबाउट ए लिटिल बॉय हु इज़ इन हिज यंग लाइफ। एक छोटे लड़के के बारे में बताया गया है जो अपनी यंग लाइफ में है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही इज़ लर्निंग व्हाट इट इज़ लाइक टू एक्सपीरियंस ग्रीफ आफ्टर द लॉस ऑफ मच बिलव्ड पोजीशन। कि कैसे उस एक्सपीरियंस को सहन करना है जो कि अपनी सबसे प्यारी वस्तु के खो जाने के बाद हमें होता है। ओके, सो यहाँ पे बिलव्ड पोजीशन कौन सी है, सबसे प्यारी चीज़ कौन सी है बच्चे के लिए, उसकी बॉल है। मे बी फॉर अस द लॉस ऑफ अ बॉल इज़ ऑफ अ माइनर कॉन्सिक्वेंस। हो सकता है हम में से बहुत सारों के लिए बॉल गुम होना क्या है, बॉल का गुम होना एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बस कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटा सा इंसिडेंट है। आर नेचुरल रिएक्शन मे बी दैट स्टिल देर आर मैनी मोर बॉल्स। हम क्या कहेंगे, अरे एक बॉल तो गुम हुई है और ले लेंगे, ठीक है, हमारा रिएक्शन ये है। सो नीड नॉट टू वरी, तो चिंता की ना कोई बात नहीं है। बट टू द लिटिल बॉय दिस इज समथिंग डिफरेंट। लेकिन उस छोटे लड़के के लिए ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है। वन कैन गेट अनदर बॉल विद ए वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी इंसान थोड़े से पैसों में बहुत सारे बॉल खरीद सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे पोएट ने सिम्बॉलिक वे में बॉल को यूज़ किया है। ही सेज दैट बॉल इज द सिम्बॉलिक ball is the symbol of his childhood days, and when we lost the childhood days there is no power to buy back those days। so with the money, which is an external thing, which is immortal here, we cannot buy our love, our childhood days, our emotion back। Okay, so it has been said that money cannot buy a, that money cannot buy, which cannot buy all the things, all the emotions to us। Okay, चलिए, it cannot replace things what we love। जो चीज़ें हमें प्यारी होती हैं उनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। सो इन दिस पोएम द बॉयज बॉल वेन इज इजीली पर्सोनिफाइड। जो लड़के की बॉल है उसको बड़ी आसानी से पर्सोनिफाइड किया है, किससे सिम्बलाइज किया है, उसके यंग डेज से, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे, उन दिनों में बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट था वो, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करता था। पीपल मे टेक बॉल जस्ट एज दे विल टेक अवे आर इनोसेंस। तो यहाँ पे लोगों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जैसे बॉल गुम हो जाती है उसी तरह से लोग भी इनोसेंस को छीन लेते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ग्रो अप होना है, सब कुछ फेस करना है। एंड वंस वी लॉस आवर इनोसेंस देन वी कैन नॉट गेट इट बैक। और होता यही है कि एक बार जब हमारी इनोसेंस, जब हमारा बचपन, इनोसेंस का मतलब यहाँ पे चाइल्डहुड से लिया गया है, जब एक बार वो चाइल्डहुड गुम हो जाता है तो हम इसे वापस नहीं ले सकते हैं। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज वी हैव टू लर्न टू स्टैंड अप। लेकिन चाहे जो भी कंडीशन हो, जो भी बात हो, हमें ये तो सीख ही लेना है कि किस तरह से हमें बेयर करना है किसी भी लॉस को, किसी भी ओल्ड एज को, किस तरह से हमें भूल करके आगे बढ़ना है। ऑब्वियसली वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड गेट ऑन विद आवर लाइफ। तो निश्चय ही हमें मजबूत बनना होगा। वी हैव टू फेस ऑल द डिफ़िकल्टीज, all the time passing, which can be good or bad, so we have to face all the things, we have to bear all the things very bravely।
Get on with our life, it means we have to be comfortable in our life irrespective of the sadness inside. कितने भी चाहे दुखी क्यों ना हो हमारी ज़िंदगी में, कितने भी दुख क्यों ना आए, लेकिन हमें हमेशा ही कैसा रहना है, मजबूत बनना है, स्मूथ तरीके से अपनी लाइफ को चलाना है. दिस इज़ द ओनली वे वी विल सर्वाइव. केवल जीवित रहने का यही तरीका है. सो देयरफॉर वी हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट एंड लेट गो. इसलिए हमें सब कुछ स्वीकार करना ही होगा और बातों को हल्के में लेना ही पड़ेगा. The poet has made the use of the imagery while telling how the ball personifies the spirit of the boy's childhood innocence. इसका मतलब जो हमारा पोएट है उसने इमेजिनेशन का यूज़ किया, इमेजरी का यूज़ किया है कि कैसे बॉल को उसने पर्सोनीफाइज किया है बच्चे का चाइल्डहुड दिखाने के लिए, उस लड़के का चाइल्डहुड दिखाने के लिए. We may visualize how the spirit of this little boy, like the ball, is sinking into the dark water of the harbor. हम अच्छे से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि देयर क्रिएट अ पिक्चर इन आवर माइंड हाउ द बॉल इज लूजिंग, हाउ द बॉय इज डेस्परेट, हाउ ही वो स्टैंडिंग एट दैट बैंक ऑफ द वाटर sources, ठीक है, and how he was reacting at the situation. So all the things come in our mind while we read those lines, and as it drifts further away the little boy will learn to grow up. अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ड्रिफ्ट्स फर्दर का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट्स अवे का मतलब दूर चले जाना. जैसे जैसे समय बीतता जाएगा छोटा लड़का भी सीख ही लेगा कि कैसे अपने आप को उसने बड़ा करना है, कैसे उसने अपने आप को संभालना है, एंड हाउ ही हैव टू फेस ऑल दोज डिफ़िकल्टीज. एंड दैट पार्ट इज लिंक्ड टू दैट बॉल ग्रोज अप एज वेल. और यही वो पार्ट है जो कि बॉल से जुड़ा हुआ है. Until it is no longer a little boy. और जब वो लड़का नहीं, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जब वो लड़का छोटा बच्चा नहीं रहेगा, तब वो सीख जाएगा, ठीक है, क्या लॉस को बेयर करना. Thus the reader may interpret this poem literally and metaphorically both. और इस तरह से इस पोएम के दोनों मीनिंग हैं, लिटरली भी और मेटाफोरिकली भी. लिटरली का मतलब what has been written in the poem we have to take word by word, यानी कि जो भी लिखा हुआ है उसको हमने बिल्कुल अच्छे से देख लेना है, ठीक है, यानी कि उसका बिल्कुल अक्षरस्थ मीनिंग लेना है, जो लिखा हुआ है वैसे के वैसा. और मेटाफोरिकली का मतलब सिंबॉलिकल वे में यूज़ किया हुआ है, ठीक है. इफ़ लिटरली देन इट इज़ द सोलफुल पिक्चर ऑफ द लिटिल बॉयज ग्रोइंग अप एंड लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ द फर्स्ट इन हिज पोजीशन. अगर हम लिटरली यानी कि जो लिखा हुआ वही पढ़े तो ये एक छोटी लड़की की बात बता रहे हैं जिसमें उसकी एक बड़ी जीवंत पिक्चर दिखा रखी है, लाइव पिक्चर दिखा रहे एक छोटे बच्चे की जो कि बड़ा होता है और वो सीख रहा है किस तरह से अपनी ज़िंदगी में पहली गुम हुई चीज़ को उसने सहन करना सीखा. इफ़ मेटाफोरिकली, अगर हम मेटाफोरिकली सिम्बॉलिकली बात करें तो इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मैनकाइंड लर्निंग टू डील विद द लॉस ऑफ देयर लव्ड थिंग्स एंड पीपल. तो हम पूरी मानव जाति के बारे में ही बात करेंगे जो कि अपने नियर डियर वन थिंग्स को खो देते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की शेप में हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं, यानी कि कुछ भी गुम हो जाए, किस तरह से उसे अपनी ज़िंदगी में उस लॉस को फेस करना है. दैट हैज़ बीन टोल्ड इन द पोएम in metaphorically form, but literally it is the story of a boy who has lost his ball. So what is the main idea of the theme in the poem? The central point, the theme, the main idea, the value point, for all those points you have to write the same things. The main idea of the poem is the sense of loss in life. सही बात है, ज़िंदगी में लॉस को कैसे हमने सहन करना है, यही इस पोएम का मेन आइडिया है. द लॉस इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ. एक्चुअली क्या है, जीवन का सत्य होता है. लॉस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइफ. द सूनर मैन लर्न्स टू टॉलरेट इट द बेटर इट इज़. जितनी जल्दी इंसान इसको सहन करना सीख जाएगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा. When we lose something for the first time we feel very sad. पहली बार जब भी कुछ गुम होता तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में we learn to live with our loss. हमें बाद में जीना आ जाता है अपने लॉस को कबूल करके, यानी कि लॉस के साथ वी एक्सेप्ट द लॉस एंड इन दिस वे वी लर्न टू लिव हैप्पीली इन आवर लाइफ. इन दिस पोएम द बॉय लूजेस ऑल द बॉल, हिज बॉल, अपनी बॉल को गुम कर देता है, बहुत ज़्यादा सैड है वो. द पोइट कैन बाय हिम अनदर बॉल. अब पोइट यही कर सकता है कि बच्चे को खुश करने के लिए दूसरी बॉल दे सकते हैं. उसे कह सकता है बेटा थोड़ी सी कीमत क्या है कि आप दूसरी ले सकते हो, लेकिन he doesn't want to do so. वह ऐसा नहीं करना चाहता. He wants the boy must learn the bitter truth of life.
वो चाहता है कि बच्चे को ज़िंदगी की इस कड़वे सच को समझ लेना चाहिए. कौन सा कड़वा सच? That everyone can suffer the loss of something dear. Okay, that everyone should lose his near dear one thing. So it's better to face all the consequences whatever come in human beings life without any regret. Okay, so this is the main theme, that we have to bear the loss, as loss is the part and parcel of human beings life. Nobody can prevent whatever be the hardship in our life come. Okay, so it's our life, we have to bear all the things. So with this thought, I just want to say, just do your work and don't regret, honestly do your work. Okay, thank you very much, have a nice day.